लोकल भाषाओं में आखिरी वाक्य बोल जनहित दीजिए। के फैसलों का प्रमाणिक अनुवाद प्रकाशित करें और उपलब्ध कराएं। जी धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री विजय कुमार दुबे जी, बनारस में आयोजित हुआ था। 2 मिनट नहीं 2 मिनट तो कुल तो मैं आखिरी वाक्य बोलिए। और उस संबंध में माननीय गृह मंत्री जी ने वहाँ कहा था व्यवस्था में विजय परिवर्तन कुमार का भी है। दुबे जी। स्वयं Thank you, sir. The yarn price of the month of November and was announced of the first of last month. The industry has been severe dissatisfaction of 50 rupees has been sharply charged for all the varieties. Tamil Nadu accounts for the 1/3 of the country's textile trade. The government exports in India have been hit hard by the sharp rise in the yarn price. If the price yarn is not controlled, the many companies in the textiles industries, the second largest in the country, will be the force of the close to job loss will be huge. The major reason for the rise of the cotton price due to the imposition of 5% basic customs duty, the 5% agriculture infrastructure development tax, and 10% social welfare tax in the control. But central budget for the 21-22 has increased in the total import tax 11%. Therefore, the minister should intervene to protect the textiles industries and prevent the job loss, remove the 11% import duty of the cotton, avoid the speculation. In addition, the order the participants in the electronic action. For small, medium, and micro enterprises, the exchange terms and conditions should be adjusted to the list of 500 cotton belts from December of March in the peak cotton procurement period. Extension of the 5% subsidy to the cotton mills should be given, sir. Thank you, sir. श्री गोपाल शेट्टी जी, श्री गोपाल शेट्टी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं मुंबई शहर के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जटिल समस्या पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने आज़ादी के 75 साल यानी 2022 तक देश के सभी लोगों को हक का पक्का घर देने का घोषणा किया और पूरे देश भर में 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इसका अप्रूवल भी दिया, जिसमें महाराष्ट्र में 11.5 लाख लोगों को घर देने के लिए उन्होंने अप्रूवल दिया। मुंबई शहर की अगर मैं बात करूं तो मुंबई शहर के पूर्व मुख्यमंत्री सन्मान्य देवेंद्र फडणवीस जी ने कायदे में सभी प्रकार के बदलाव करके 2018 में सभी जो 2011 तक के अपात्र लोग हैं उनको भी घर देने का नियम बनाया, कायदा बनाया। केंद्र सरकार ने सभी को 2.5 लाख रुपया देने का वादा भी किया और दे भी रहे, लेकिन उसके बावजूद भी वर्तमान में जो नई सरकार आई है ये 2018 के बदले हुए कानून का अभी तक अमल नहीं कर रही है। मैं मुंबई शहर में बहुत सारे आंदोलन के माध्यम से ध्यान आकर्षित किया, मुख्यमंत्री से लेकर सभी अधिकारियों को मैं मिला, मैं मुंबई महाराष्ट्र के राज्यपाल महामहिम राज्यपाल जी को मिला, राज्य मानव आयोग के पास भी हम लोग गए, इसका आदेश भी उन्होंने दिया। अब राष्ट्रीय मानव आयोग के पास ये प्रश्न प्रलंबित है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि केंद्र सरकार तुरंत हस्तक्षेप करके दिसंबर 2021 के पूरे होने के पहले 2022 आने के पहले केंद्र के जो योजना है और हमारे देश के प्रधानमंत्री का सपना है जो सबको हक का घर देने का, मुंबई शहर के लोगों को भी यह मिले, इसके लिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं। धन्यवाद। Dhanyawad, Speaker, sir. I would like to raise an important issue of my constituency regarding railways. This is the Gunpur-Tiruvallur rail line, for which is pending for many days because there is a disagreement between the state government and central government on the financing of it. I would request that this project should be approved at the earliest and a committee should be set up where the state government, the railway ministry and the MP, we can be involved and revive the project. In addition to this, sir, on railways, the Raida railway division work is pending for a long time. This has been announced before the election, but this has not been done. On the Vistadam coach, the Visakhapatnam Aruku Vistadam coach is currently available. We would request this to be extended to Koraput and Raida. This is a very, very scenic place with lush green trees and lovely waterfalls and so on. We would request the railways to restart the trains from Koraput to Raida and introduce Vistadam coaches there to promote tourism. At the same time, sir, the Rajyarani Express in Gunpur, this is only thrice daily, thrice weekly, we want to extend to weekly. And the Bhubaneswar Palasa Memu Express, we want to extend it to Gunpur. In addition to this, Jimidipetta, Tiruvali and Lakhimpur, the railway stations, train used to stop in this particular station, but post-COVID time,
train is not stopping here. So these are some of the very genuine demands of the people. I would request the Ministry of Railways to kindly consider all the demands and do the needful and send a response back to us. Thank you, sir. श्री दिलीप सैकिया जी। नमस्कार अध्यक्ष जी, शून्यकाल में आपने मेरे को बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोक महत्व के विषय आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र में दरंग जिला अभी भी रेल मानचित्र में नहीं है। मैं इस विषय को 2 बार पहले सदन में उठा चुका हूं। महोदय, मैंने माननीय रेल मंत्री जी से 24 जुलाई 2019 को मेरे संसदीय क्षेत्र मंगलदय में रेलवे लाइन की निर्माण के संबंध में प्रश्न पूछा था, जिसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया था कि इस रेल लाइन के लिए 2016-17 में सर्वे स्वीकृत किया गया था और सर्वे का काम भी पूर्ण हो चुका है, लेकिन सर्वे के रिपोर्ट का निरीक्षण कर अभी तक लागू नहीं किया गया है, जिसके कारण रंगिया से डेकरगांव भाया बेजरा दुमनीसुकी सिपाजार मंगलदय खरबतिया दलगांव ओरंग लगभग 140 किलोमीटर की रेल लाइन निर्माण का कार्य लंबित पड़ा हुआ है। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र मंगलदय के दरंग जिले में कोई भी रेलवे स्टेशन अभी तक नहीं है। दरंग जिले से सटे हुए बांसका जिला में गोरेश्वर रेलवे लाइन स्थित है, जिसके कारण क्षेत्र की जनता को काफी कठिनाइयों की सामना करना पड़ रहा है। मेरा आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन है कि रंगिया से डेकरगांव रेलवे लाइन की सर्वे के रिपोर्ट जल्द ही जल्द स्वीकृत करके रेल लाइन के निर्माण कार्य हेतु डीपीआर और फंड आवंटन की आने वाले रेल बजट 2022 में शामिल किया जाए और एक निश्चित समय सीमा में यह कार्य पूर्ण हो सके, इसके लिए किसी को जवाबदेही तय करके जिसके कार्य तय समय के शुरू किया जा सके। महोदय, मैं आजादी के इस अमृत वर्ष इस महोत्सव में मैंने फिर से इस सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी को गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरे दरंग जिला को रेल मानचित्र में शामिल करके इस दरंग जिला वासियों को बहुत सुविधा मुहैया कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। प्लीज Sir. The Kerala government is trying to build a most modern state. Unfortunately, the central government has become an obstacle to the development of Kerala state. The center and state had agreed in principle to build a semi-high-speed railway line that would drastically reduce the travel time between Thiruvananthapuram and Kasaragod to less than 4 hours. The central government changed the track and said it was unwilling to give financial guarantee for the projects. Center seemed to succumb to the pressure exerted by the Nexus. It had backpedaled in the Sabarimala airport, Thiruvananthapuram Chenganur suburban highway and other critical infrastructure projects such as other demand is for you. श्री लाबू श्री कृष्ण जी। It had backpedaled in the Sabarimala airport, Thiruvananthapuram Chenganur. Sir, recently I had opportunity to speak with the Agriculture Society chairman and members of my constituency and my area of Palnadu. They came up with numerous problems with regards to the farmers. Primarily among the problems they expressed was a non-availability of the fertilizers, like DAP and urea in our state of Andhra Pradesh, sir. Concerning this state of affairs, that the center make fertilizers available to the states without any further delay and provide a detailed timeline of when it will be done to keep the rate of the DAP and the previous subsidy rate at 1200 rupees per kg instead of 650 rupees for farmers in areas experiencing severe economic losses due to the heavy rainfall, sir. Most important, I additionally request that the farmers' plight be taken urgent recognition and development of indigenous capabilities to meet our fertilizer needs be ramped up. To the Speaker, I humbly request the Ministry of Chemicals and Fertilizers and Agriculture and Farmers Welfare to take the action on the above issues, sir. Thank you very much. श्री गणेश सिंह जी।
सभापति महोदय, मेरा 0 आवर की लिस्ट में नाम है, लेकिन मैं आपकी अनुमति चाहता हूं, नियम 227 के तहत विशेषाधिकार से संबंधित मामला उठाने की अनुमति दी जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपको विदित है कि मैं लोकसभा सतना संसदीय क्षेत्र का लगातार चौथी बार प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र सतना के अंतर्गत रैगांव विधानसभा क्षेत्र है, जिसका उपचुनाव 30 अक्टूबर 2021 को हुआ था। दिनांक 28 अक्टूबर को मैं सतना से नागौद विधानसभा के कुलगड़ी गांव रैगांव विधानसभा क्षेत्र के सिद्धपुरा गांव होते हुए जा रहा था। तब रास्ते में एक सम्मानीय जनपद सदस्य के निवास पर एक छोटा सा पारिवारिक कार्यक्रम था, जिनके आग्रह पर मैं उक्त कार्यक्रम में कुछ पल के लिए सम्मिलित हो गया। लेकिन उसी समय एक अत्यंत आश्चर्यजनक घटना घटित हुई और कांग्रेस प्रत्याशी बिना आमंत्रण के जनपद सदस्य के निवास पर पहुंचकर तेज आवाज में मेरे पास आकर नितांत धमकी भरे अंदाज में कहने लगी कि मैं वहां से चला जाऊं, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जनपद सदस्य के निवास पर उनके अन्य रिश्तेदार भी विराजमान थे। कांग्रेस प्रत्याशी के सम्मानजनक आचरण से वे भी अत्यंत आहत प्रतीत हो रहे थे। तो मैंने कांग्रेस प्रत्याशी को बड़ी विनम्रता से यह बताया कि मैं उनके निमंत्रण पर यहाँ आया हूँ, जो कि इस पूर्ण रूप से एक पारिवारिक और निजी कार्यक्रम है और मेरी उपस्थिति का विधानसभा चुनाव से कोई भी संबंध नहीं है और ना ही यहाँ कोई चुनाव प्रचार हो रहा है। इसके तुरंत पश्चात मैं नागौद विधानसभा के कुलगड़ी गांव के लिए प्रस्थान कर गया, ताकि मेरी उपस्थिति जो पूर्ण रूप से एक पारिवारिक कार्यक्रम में थी, उसको लेकर कोई प्रपंच न रचा जाए या फिर उसको कोई राजनीतिक रंग न दिया जा सके। लेकिन एक अत्यंत नाटकीय ढंग से थोड़ी देर में जिला प्रशासन के साथ चुनाव आयोग के अधिकारियों द्वारा नागौद थाने में मेरे विरुद्ध एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इस घटना की खास बात यह रही कि ना तो जिला प्रशासन ने और ना ही चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कोई प्रारंभिक तफ्तीश की और ना ही मेरा पक्ष जानने का प्रयास किया। महोदय, इस पूरे घटनाक्रम से मुझे न केवल मानसिक रूप से आघात पहुंचा है, बल्कि यह मेरे सांसद होने के नाते विशेषाधिकारों का उल्लंघन है। इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते किसी कार्यकर्ता या संसदीय क्षेत्र के निवासी के सुख दुख में शामिल होना, जो कि विशुद्ध रूप से मेरा एक निजी दायित्व था, वह किसी प्रकार आचार संहिता का उल्लंघन कहा जा सकता है। यह स्थिति उस समय और भी गंभीर हो जाती है जब इस प्रकार एक तरफा कार्रवाई मेरा पक्ष सुने बिना कर दी जाती है। मेरा आपसे आग्रह है, विशेषाधिकार हनन के मेरे द्वारा प्रेषित इस नोटिस पर लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 227 के अंतर्गत तत्काल संज्ञान लिया जाए और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी सम्मत उचित कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। देखिए, कुछ अन्य माननीय सदस्यों को अवसर मैं दूंगा, परंतु कृपया 1 मिनट में अपनी बात कहिए, जिससे अधिक सांसदों को अवसर दिया जा सके। जी, श्री निशिकांत दुबे जी। 1 मिनट जी। सभापति महोदय, इस देश का बंटवारा 1947 में धर्म के आधार पर हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी भारत एक सेकुलर कंट्री रहा। अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बढ़िया जजमेंट आया है अध्यक्ष महोदय, और उसने एक इंस्ट्रक्शन दिया है या सलाह दिया है कि जो संविधान है, जिसके लिए कि अभी हमने संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया सर, कि उसका जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है आर्टिकल 44, वो ये कहता है कि इस देश में कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए। ये देश ही अपने आप में एक बड़ा देश है और आश्चर्यजनक देश है सर, कि पूरी दुनिया में यदि धर्म के आधार पर कहीं कुछ होता है तो सीआरपीसी में चेंज होता है। मुस्लिम का अलग सीआरपीसी हो सकता है, क्रिश्चियन का अलग सीआरपीसी होता है, लेकिन हिंदू का अलग सीआरपीसी होता है, क्योंकि सभी धर्मों में अलग अलग व्याख्या दी गई है दंडात्मक। लेकिन यहां सीआरपीसी एक है। लेकिन इतने वर्षों में, आजादी के इतने वर्षों के बाद, 75 साल बाद भी हम कॉमन सिविल कोड, ये माननीय जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को लागू नहीं कर पाए हैं और इसके लिए कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। इसीलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि जल्दी से जल्दी कानून लाकर यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए। श्री शशि थरूर जी। Thank you very much, Mr. Speaker. I wish to draw the attention of the Honourable Minister for Petroleum and Natural Gas to the reduction in funds allotted for the provision of non-subsidized kerosene through the public distribution system. It is particularly the supply is vital for fisherfolk who rely on kerosene for fuel for their fishing boats. For the year 21-22, Kerala has been allotted 15,108 kilolitres of non-subsidized PDS kerosene, which is grossly insufficient to meet the needs of the fishery sector, that is the backbone of the state's economy. I therefore urge the Minister to further increase the quota of non-subsidized PDS kerosene available to Kerala
keeping in mind its immense importance to the state's economic well-being, as well as that of the fisher community that has been grappling with serious challenges due to pandemic restrictions. बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज पूरे देश में एक नया शिक्षा नीति हमारे प्रधानमंत्री
contractor. The TRS government in Telangana श्रीमती प्रोतिमा failed to मंडल। procure the प्रोतिमा मंडल जी। Civil service examination conducted by UPSC is one of the most coveted role to qualify the main stage. The same subject in which he or she completed graduation degree. Today I would like to represent and raise the matter of thousands of aspirants of dental sciences background. According to the aspirants, it is difficult for them to select an optional as dentistry is not included as a subject by UPSC. There are several subjects like agriculture, animal husbandry, veterinary science, medical science, engineering, but dentistry is left out. This discourages the candidate and are forced to opt for a new subject altogether, so which turns out to be extremely difficult. I believe dental education has been neglected by the government long. It is high time to award the field the status it deserves. Sir, I would like to request the government through you, sir, to look into the matter seriously and try best to include dentistry among the list of optional subject in the civil service examination. Thank श्रीमती you, sir. नवनीत राणा जी। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंतप्रधान आवास योजना के विषय पे मैं बोलना चाहूँगी कि 2022 तक का जो सपना हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी का है, अगर ग्राउंड लेवल पे हम देखेंगे तो आज स्टेट्स में जो भी हिस्सेदारी हमारी केंद्र से आनी है, वो हिस्सेदारी हमारे केंद्र से हमारे राज्य में हमारे जितने भी लाभार्थी हैं उनको मिल रही है। पर 3 वर्षों से पिछले लोगों ने अपने स्लैब तोड़ दिए। स्लैब लगाने के उसमें वो 3 साल से भाड़े के घरों में रह रहे, उनको उनका दूसरा जो इंस्टॉलमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट जो राज्य से मिलना है वो अभी तक उनको मिला नहीं है। और आटा के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र में आटा मिलता है परमानेंट रेजिडेंस का, उसके लिए उन लोगों को, लाभार्थियों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उसके साथ में जितने भी पीआर कार्ड शहरी विभाग में मिलने चाहिए वो भी उन्हें मिल नहीं पा रहे हैं। और पंतप्रधान आवास योजना में जितने भी रिटायर्ड ऑफिसर हैं उन्हें उस क्षेत्र में वापस बिठाया गया है कि आप ये काम कीजिए। वो ये काम बिल्कुल भी इंटरेस्ट से नहीं कर रहे हैं। अगर अमरावती क्षेत्र का आप पूछेंगे, क्योंकि रिटायर्ड लोगों को उनकी पेंशन भी लागू है, तो जितने भी लाभार्थी लोग हैं उन्हें ये कोई इंटरेस्ट दिखा के उनका काम करने में इच्छा नहीं रखते हैं। तो उस पर जरूर एक कमेटी बिठाकर जिस भी क्षेत्र में पंतप्रधान आवास योजना चालू है, अगर वो टाइम पे पूरा नहीं हो रहा है तो किसकी मिस्टेक है, किस वजह से लाभार्थियों को उसका लाभ नहीं दिया जा रहा है, इस पे जरूर चौकसी और इस पे कमेटी बिठाइए। इतनी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। धन्यवाद सर। Sir, thank you, sir, for giving me this opportunity. Sir, this is regarding Andhra Pradesh. The number of persons covered under the targeted public distribution system is 2.68 crores, sir, translating to 61% of the rural population and 41% of the urban population. This is the grossly inadequate considering the facts of the national level. 75% of the rural population and 50% of the urban population are covered under TPDS. Sir, this has resulted in a large number of needy and discovering persons are being uncovered. Sir, 50 lakh additional families are covered by the public distribution. Quickly make your point, please. Implemented by the state government, sir. Sir, my request is the state government is being overburdened due to this. I request the state data be revised and corrected. I urge the central government comprehensive view to be taken on the property level in the state. कृपया अपनी सीट पर जाइए। Coverage of the population of Andhra Go back Pradesh to your and seats. TPDS. आप कुछ बोलना चाहेंगे तो मैं अवसर देने के लिए ensure तैयार that हूँ। Please call back your fellow members to their seats. Please. Union Minister of Piyush Goyal ji, please understand the plight of the people. Sir, thank you, sir. In both peace and crisis, the media plays a key role in the holding parliamentary accountable. Hence, restrictions on access to media must only be made to extraordinary circumstances and for a limited time period only. As if now permission is given only to the official media, Doordarshan, LSTV, RSTV, which have been merged in Sansar, and most of the news agencies attend daily proceedings.
Moreover, a lottery system was put in place under which 21 other electronic and print media reporters were allowed to enter the parliament. But it is noted that the English and Hindi media journalists are getting most of the opportunity to enter to the parliament, while only 2 authorized journalists from Malayalam press media has not the chance. So, therefore, I urge the government that the restriction from the media may be lifted, and more South Indian presses, especially from Kerala, may be given the chance reporting parliamentary matters during the session. Thank you. मोहित्रा जी, संक्षेप में प्लीज बी ब्रीफ। मैं प्रत्येक ऑनरेबल मेंबर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, संक्षेप में कहिए अपनी बात जी। Thank you, sir. I would like to bring to the attention of this House a very important issue which is happening in the state of Goa right now. There is a ASI protected site next to St. Cajetan Church in Vela de Goa, in Old Goa, and within the precincts of the church, inside the protected site, there is an illegal construction of a luxury villa of 840 square meters. The Chief Minister, under pressure, has said that he is revoking permission. Sir, it is not enough to revoke permission. The illegal structure must be demolished. Thank you, sir. श्री रमेश विधुड़ी जी। धन्यवाद। आपने मुझे एक बहुत ही गरीबों के हित में सेंसिटिव मुद्दे पर बोलने का मौका दिया है। अध्यक्ष जी, दिल्ली के अंदर 1993 से लेकर 86 के बीच में तब की दिल्ली की सरकार ने गरीब भूमिहीन लोगों को प्लॉट दिए थे, रिहायशी लैंडलेस लोगों को। सर उन लोगों को प्लॉट दे दिए, वहां पर खून पसीने की कमाई के कारण वो लोग रह रहे हैं, गरीब लोग। लेकिन 90 के दशक में एक रिज एक्ट आया, फॉरेस्ट का एक्ट। उस फॉरेस्ट एक्ट में अधिकारियों ने मौके पे जाए बगैर उन जमीनों को, जो प्लॉट लोगों ने बनाए थे या कुछ भूमि लोगों ने, गरीब लोगों ने जगह पर ग्राम पंचायत की जमीन में उसमें अपने मकान बना लिए थे। अब फॉरेस्ट के अधिकारी जाकर उन लोगों के मकानों को गिरा रहे हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री सभी गरीब लोगों को, भूमिहीनों को पक्के मकान बनाने का काम कर रहे हैं, एक तरफ दिल्ली सरकार बिल्कुल संज्ञान नहीं ले रही है। वरना रिज मैनेजमेंट बोर्ड के माध्यम से उन प्लॉटों को जो आज से 40-50 साल पहले सरकार ने अलॉट किए थे सर, उन लोगों को, भूमिहीनों को, उनको बसा दिया। उन लोगों को वहां पर और ग्राम सभा की जमीन को रिज में अलॉट किया जाए और उन लोगों को पक्का घोषित किया जाए। ऐसा मेरा आपके माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री से निवेदन है। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का समय दिया है। अध्यक्ष जी, ये जो ऐतिहासिक किसान आंदोलन हुआ है, जिसके कारण ये तीनों काले कृषि के कानून वापस हुए हैं, उसमें 700 से अधिक किसान शहीद हुए हैं। मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूं कि उन किसानों की सूची तैयार करके उनके परिवारों को 5-5 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए, और जो आज भी किसान मांग उठा रहे हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य की, और जो उनकी बाकी मांगे हैं उनको भी पूरे कर जो हमारा किसान है, जो हमारा अन्नदाता है, उससे पूरी तरह इस सरकार को न्याय करना चाहिए। ये मेरा सरकार से आग्रह है। श्री रामकृपाल यादव जी, प्लीज बी ब्रीफ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान और सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्रा लोकसभा के दानापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो आ रही कठिनाई है उसके तरफ ले जाना चाहता हूं। माननीय महोदय, दानापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दानापुर कॉन्टोमेंट है और बहुत ही पुराना कॉन्टोमेंट है, और यहाँ कॉन्टोमेंट के अंतर्गत रास्ते से आने जाने वाले लोगों की संख्या 4 गांव में महत्वपूर्ण 4 ऐसे गांव हैं जिससे लगभग सर्वे रोड है, 100 बरस से आया जाया करते थे, और ख़ास तौर पर लोदीपुर चांदमारी रोड बहुत ही प्रमुख है। वहाँ के किसान, वहाँ के आम जन बहुत परेशान हैं, चूँकि सैन्य अधिकारियों द्वारा अकारण बिना कुछ बताए हुए रास्ते को बंद कर दिया गया है, जिसके वजह से लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं आपको बताऊं कि माननीय रक्षा मंत्री जी से भी व्यक्तिगत रूप से मिल करके 3-4 दफ़ा आग्रह किया है, और यही नहीं, सैन्य के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं CDS, उनसे भी मिलकर मैंने आग्रह किया है, मगर अभी तक रास्ता खोलने का कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी माननीय महोदय, मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री जी का पुनः और अन्य अधिकारियों का, माननीय सदस्य संक्षिप्त अपना विषय रखें, सीधे विषय पर आए, और उससे जुड़े हुए जिससे अधिक से अधिक माननीय सदस्यों को अवसर दिया जा सके।
कर रहे थे, श्री एम गुरुमूर्ति जी, कठिनाई को देख, श्री एम पहली बार बोल रहे हैं वो, जरा ध्यान से प्लीज। अब बैठिए, आपका स्वागत है जी, बोलिए। बोल रहे हैं वो, पहली बार बोल रहे हैं जी। Honorable Chairman, sir, thank you profusely for giving me this opportunity to raise an important issue. Sir, I represent Tirupati Parliament constituency. Sir, Honorable Minister of Civil Aviation assured several times that Tirupati Airport is one of the 8 airports selected for promotion of MRO center, and Invest India also proposed to highlight Tirupati potential as an MRO center. I request Honorable Civil Aviation Minister to appoint a special officer for speedy implementation of MRO center and logistic park project in Tirupati Airport, and also increase an airport connectivity to Tirupati International Airport under UDAN scheme. I request for early consideration of implementing MRO and relevant tendering, sir. Thank you, sir. Thank you. Shri Dr. Umesh Yadav ji. Thank you, Speaker, sir, for allowing me to speak on zero hour. Sir, गुलबर्गा, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी गुलबर्गा के एक शाबाद के तालुका में ये प्री कोविड पीरियड में बहुत से ट्रेन रुकते थे, वो अब कोई ज़्यादा ट्रेन नहीं रुक रही हैं। वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एरिया है और बहुत से लोग अप एंड डाउन करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है सर, आपके थ्रू रेलवे मिनिस्टर को ट्रेन नंबर 1703132 मुंबई हैदराबाद एक्सप्रेस जो इम्पोर्टेंट ट्रेन है उसको शाबाद में स्टॉप दिया जाए। ट्रेन नंबर 08519 विशाखापट्टनम लोकमान्य तिलक ट्रेन जो हाल ही में 4 दिन स्टॉप दिया गया है, वही ट्रेन दूसरे नंबर पे चलती है और 3 दिन देना है, वो भी नहीं दिया गया है सर। और 1635251 1633231 बहुत से ट्रेन वहाँ पे रुकना है सर, ये मेरी रिक्वेस्ट है। श्री मणिक्रम टैगोर जी, थैंक यू। Chairman sir, it is a matter of grave concern that at least 50 lakh people have died in the country due to COVID. However, the government has given a different statistics of 4.5 lakh people. The stories of the families of those who died due to COVID is highly pathetic, and they have lost their breadwinners and consequently were pushed to severe financial distress. Therefore, it is the responsibility of the central government to provide proper compensation to rehabilitate them. Therefore, I request through you, sir, the government should provide 4 lakh rupees for those who died in the COVID, as the demand was made by my leader, Mr. Rahul Gandhi. Thank you, sir. कुमार दानिश अली। सभापति महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ उठाने के लिए खड़ा हूँ। जैसे कि सरकार ने किसानों के विरोध के चलते कृषि कानून वापस लिए, ऐसे ही एमएसपी पर जो है कानून लाना चाहिए किसानों के लिए। और दूसरा मेरा जो आपने दूसरे विषय का नोटिस दिया, उसी पर बोलिए। मेरा विषय कोविड-19 महामारी के कारण बंद हुए महाविद्यालय इत्यादि, उसी पर बोलिए। सर दोनों थे मेरे। नो, वो पहला था। बोलिए। सरकार से ये मांग करता हूं कि कोविड के चलते विश्वविद्यालय बंद हुए थे, स्कूल्स बंद हुए थे, स्कूल्स खुल गए, लेकिन सारे ऑफिसेज खुल गए, लेकिन जहां पर देश का भविष्य तय होता है, जहां पर ओपन स्पेस होता है, विश्वविद्यालय अभी तक बंद हैं। और खास तौर से ऐसे विश्वविद्यालय जामिया मिलिया इस्लामिया हो, जेएनयू हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, जहां पर छात्रों ने इस देश को रोशनी दिखाई थी, वहां के कई छात्र नेता जो है जेल में यूएपीए के तहत गलत मुकदमे लगा करके उन्हें जेलों में बंद करके रखा है, उनको छोड़ा जाए। और श्री मनोज कोटक जी, प्लीज। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में सामाजिक सौहार्द खराब करने वाली घटनाएं हुई है। महाराष्ट्र में अमरावती, नांदेड़, मालेगांव इन जैसे शहरों में प्लान्ड तरीके में बहुसंख्य हिंदुओं के व्यापारी एस्टैब्लिशमेंट और घरों के ऊपर हमले किए गए। त्रिपुरा में जो घटना बनी नहीं थी उसको सोशल मीडिया के ऊपर फैलाकर लघुमतियों को रोड के ऊपर लाया गया और बहुसंख्य हिंदुओं की इमारतों को टारगेट किया गया। इस तरह की घटना में राज्य सरकार और पुलिस की भूमिकाएं संदिग्ध है। रजा एकेडमी और पीएफआई जैसी संस्थाओं की भूमिका संदिग्ध है। इसकी जांच होनी चाहिए।
रजा एकेडमी और पीएफआई जैसी संस्थाओं पे बैन लगना चाहिए। और जिस तरह से बहुसंख्यक हिंदुओं को टारगेट किया गया, पुलिस ने भी दूसरे दिन कार्रवाई में केवल और केवल हिंदुओं के ऊपर कार्रवाई की है। महाराष्ट्र की सरकार इस तरह से टारगेट करने का काम कर रही है। उदय प्रताप मेरी सिंह जी, आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि इस तरह की घटना की धन्यवाद माननीय सभापति जी। सबसे पहले मैं कोविड के समय बेहतर प्रबंधन के लिए रेल मंत्रालय का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कोरोना काल में जो ट्रेन बंद हुई हैं, मेरे संसदीय क्षेत्र होशंगाबाद नरसिंहपुर में शटल और पैसेंजर ट्रेन बंद किए गए थे, जिनका छोटे छोटे स्टेशन पर प्रभाव पड़ा है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि गुर्रा, बोहानी, सालेचौका, जुनेटा, बागरा तबा, सोनतलाई, गुरमखेड़ी जैसे छोटे स्टेशंस को लाभ मिले, वहां के अप डाउनर्स को सुविधा मिले, तो शटल और पैसेंजर ट्रेन दोबारा चालू कराई जाए और एक मेमू ट्रेन और चालू करें, जिससे स्थानीय पैसेंजर्स को लाभ मिल सके। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही गंभीर बात है कि आज किसानों की हत्या, किसानों की मौत मतलब हमारे लिए सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह गई है। ये जो किसानों का कानून लाया गया था उसमें 750 किसानों की मौत हुई, लेकिन मेरे मराठवाड़ा क्षेत्र के अंदर पिछले एक साल के अंदर 756 किसानों ने आत्महत्या की है, जिसमें औरंगाबाद जिले के अंदर 150 किसानों ने और बीड़ जिले के अंदर 174 किसानों ने आत्महत्या की है। इसीलिए जब आज ये आंदोलन कर रहे हैं एमएसपी के बारे में, हम इसका समर्थन करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इतनी बारिश हुई है, महज सिर्फ पंचनामे किए जाते हैं। राज्य सरकार कहता है कि केंद्र सरकार क्या हिस्सा हमें नहीं मिला है, इस वजह से हम किसानों का जो बीमा है, इंश्योरेंस का पैसा है, वो नहीं दे सक रहे हैं। सिर्फ राज्य और केंद्र सरकार के झगड़े के बीच में आज इतने किसान अगर आत्महत्या कर रहे हैं तो यकीनन इस देश के लिए बहुत चिंता की बात है। इसीलिए हम केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे, जो अतिवृष्टि, जो बारिश की वजह से किसानों का नुकसान हुआ है, उसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक विशेष पैकेज वहां के किसानों को दिया जाए। धन्यवाद। श्रीमती गीता कोड़ा जी। अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष सभापति महोदय जी बोलिए। पिछले कोरोना काल में कई ट्रेनों को बंद कर दिया गया, जो छोटे छोटे स्टेशन थे वहां पर ठहराव बंद कर दिया गया। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से ये मांग करती हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र में टाटा इतवारी एक्सप्रेस, टाटा बिलासपुर, टाटा एलएपी एक्सप्रेस और शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस, जगदलपुर हावड़ा, इन ट्रेनों का परिचालन पूर्व की भांति किया जाए, ताकि वहाँ के लोगों को आवागमन में सुविधा हो। आज इसके ट्रेन परिचालन बंद होने के कारण आज वहाँ के लोग रोजगार से वंचित हो रहे हैं। कई बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी लोगों को नहीं मिल पा रही है। मैं आपसे ये मांग करती हूँ आपके माध्यम से सरकार से कि इन ट्रेनों का परिचालन पुनः किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती अपरूपा पोद्दार। Thank you, Speaker sir, for allowing me to speak. I would like to draw kind attention of the government towards my Kamarkundu underpass in my parliamentary constituency. It is an urgent need that an underpass for an easy movement of the public and the pilgrimage who come to offer their prayer in Tarkeshwar by barefoot, and they face lot of problem while crossing the railway crossing. So I urge the railway minister to do a urgent survey and construction of underpass or subway in Kamarkundu and sanction it for the interest of the people of my constituency. Thank you, sir. संगीता आजाद जी नहीं है? धन्यवाद सभापति महोदय जी। सरकार ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश 2017 से जब से भाजपा की सरकार बनी है, आज तक सरकार ने कई वैकेंसियों को निकाला है, लेकिन उन वैकेंसियों को अब तक पूरा नहीं किया गया है। ज़्यादातर उन वैकेंसियों का पर्चा लीक ही हो गया है। मैं सरकार का ध्यान उन वैकेंसियों की तरफ आकृष्ट करना चाहूँगी। 2017 में सब इंस्पेक्टर का पर्चा लीक हुआ, 2018 में सहायक शिक्षा भर्ती का पर्चा लीक हुआ, 2018 में यूपी पीसीएल का पर्चा लीक हुआ, 2018 में यूपी पुलिस, 2018 में अधीनस्थ सेवा,
2018 में स्वास्थ्य विभाग प्रोन्नत, 2018 में नलकूप ऑपरेटर, 41,520 सिपाही भर्ती, 2020 में 59,000 शिक्षा भर्ती, 2021 में बीएड परीक्षा, 21 में ही पीईटी परीक्षा, अक्टूबर 2021 में सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षक प्रधानाचार्य की भर्ती, अगस्त 2021 में यूपी पीजीटी नीट की परीक्षा और अभी हाल में 28 नवंबर को यूपी टेट की परीक्षा थी, जिसका पर्चा 23 तारीख को ही लीक हो गया था। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मांग करती हूं कि आपके द्वारा प्रदेश सरकार को निर्देशित किया जाए कि इन वैकेंसियों को जल्द से जल्द भरा जाए। और 2 पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी कि जिन अभ्यर्थियों की आयु सीमा खत्म हो रही है, उन अभ्यर्थियों की आयु सीमा को बढ़ाया जाए और जो 75% गरीब अभ्यर्थियों ने इस पर्चे को भरा गया था, कम से कम उनको आने जाने का किराया भत्ता दिया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अति महत्वपूर्ण विषय इस सदन में उठाने के लिए मुझे अनुमति प्रदान की है। मेरे लोकसभा क्षेत्र जमशेदपुर में 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय रघुवर दास जी और उस सब तत्कालीन राज्य मंत्री भारत सरकार के जयंत सिन्हा जी ने दलमुंगड़ एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा लगभग 100 करोड़ रुपया भी आवंटन किया गया था, लेकिन आज तक टाटा घराना जैसे भारी उद्योग होने के बावजूद, लगभग 2000 स्मॉल स्केल ऑटोमोबाइल सेक्टर होने के बावजूद आज वहां पर एयरपोर्ट का काम शुरू नहीं हो सका। जबकि 3 स्टेट का काम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के जमशेदपुर और पश्चिम बंगाल के खड़गपुर और उड़ीसा के बालेश्वर, 3 स्टेट का इंडस्ट्रियल बेल्ट जो है उससे लगभग करीब इलाका में पड़ता है। आज वहां पर सेंट्रल माइंस होने के बावजूद एयरपोर्ट का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। आपके माध्यम से माननीय मंत्री से आग्रह करना चाहता है कि यथाशीघ्र जमशेदपुर एयरपोर्ट का काम शुरू किया जाए। धन्यवाद सभापति महोदय। Sir, 126-year-old Mullaperiyar Dam in a dangerous position. Sir, उनको माइक दिया है। Hello. Sir, I would like to draw the attention of the House to a very important matter related to the life and livelihood of the fishermen folk of our country. Sir, the World Trade Organization, which is going to happen in Geneva in March, in the 12th Ministerial Conference proposes to cut off all the subsidies which have been available to the traditional fishermen of our country, like kerosene is going to be cut off. But India should take a stand in this matter because, sir, the marine wealth, 7.28% of our GDP is the marine wealth of our country. So, sir, the traditional fishermen whose life and livelihood is to be protected, India should take a stand in this particular conference which is going to be held in Geneva, that we should support the fishermen of our country and continue the subsidies as below. Sir, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही नरेंद्र राहुल कसवा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मेरी लोकसभा क्षेत्र चूरू के अंदर आने वाली नौहर, बादरा और रावतसर तहसील का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जो मैं आपके आगे उठाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इन तीनों ब्लॉक्स के अंदर 550 करोड़ रुपए का क्लेम बनता है, रबी 20 और 21 का, और 3 महीने हो गए हैं बीमा कंपनी जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है आज तक किसानों को क्लेम नहीं दे रही है। भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने अपना प्रीमियम जमा करा दिया, पर इन किसानों को पिछले 3 महीने से इंतजार कराया जा रहा है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी हाय दिन नए बहाने बनाती है और बीमा पॉलिसी का एक प्रावधान है कि अगर आप लेट पेमेंट देते हो तो 12% का ब्याज दिया जाएगा। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि बीमा कंपनी को पाबंद करके नौहर, बादरा और रावतसर के किसानों को उनका हक का पैसा दिलाया जाए। बहुत बहुत Yes, sir. The kerosene allocation to the Kerala state is reduced by union government. If affected thousands of people in Kerala will use this for cooking, farmers, motor operations and in fishing boats. The price hike of LPG also demands more kerosene. And importantly, traditional fisher folk use kerosene in their boats. Whether union government will allocate more kerosene to Kerala with more subsidies. Thank you, sir. Shri Dean Kuriakos.
Sir, 126-year Mullaperiyar Dam in a dangerous position. Sir, the unfortunate heavy rainfall is still continuing there due to the climate change. If anything happening to that dam, it will be an international disaster, sir. Lakhs and lakhs people will be the victims. Sir, the government should intervene. Nobody is taking care about the concern about the safety of Kerala people, including our state government. Our state government is playing a faulty game, sir. They are agreed once to Tamil Nadu government for strengthening the baby dam, but that was not the issue. Issue with the main dam, sir. All the competent reports, including United Nations, Roorkee IIT, IIT Delhi, they indicates the unsafety of Mullaperiyar Dam, sir. It is seismologically, constructively, and hydrologically unsafe, sir. It should be decommissioned immediately. Otherwise, we are ready to provide enough water to Tamil Nadu. Enough water. Shri KG Madhav. Respected sir, I would like to request the Government of India to enumerate the recent damages of agriculture and also horticulture crops, sir, and also roads, irrigation canals in recent floods in Nellore, Kadapa, Anantapur, Chittoor districts, sir. I request the less than, sir, to the state of Andhra Pradesh. Thank you very much, sir. श्री भगवंत मान जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पंजाब में भारतीय फौज की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी सर फरवरी 2021 के लिए। पंजाब में कम से कम 16-17 हजार लड़कों ने, नौजवानों ने अपना फिजिकल टेस्ट पास किया। सिर्फ मेरी कंस्टिट्यूंसी संगरूर के 4000 लड़कों ने पटियाला कैंट में फिजिकल टेस्ट पास किया। बड़ी मुश्किल से वो तैयारी करते हैं, उन्होंने टेस्ट पास किया, लेकिन कोरोना के चलते सर उनका जो रिटर्न टेस्ट है उसकी डेट कैंसिल हो गई। उसके बाद फिर डेट कोई मिली और वो भी कैंसिल हो गई। सर, उनकी तरफ से पंजाब के 20,000 नौजवान जो फौज में देश की सेवा करनी चाहते हैं, खास तौर पे 4000 लड़के जो मेरे पास आए थे संगरूर के, उनकी तरफ से मैं आपके माध्यम से डिफेंस मिनिस्ट्री से मांग करता हूं, जल्दी से जल्दी उनकी जो रिटर्न टेस्ट की तारीख तय की जाए ताकि वो देश की सेवा कर सकें। बाकी और टेस्ट और नौकरियां हो चुके हैं सर। धन्यवाद। श्री अनिल फिरोजिया जी। श्रीमती प्रमिला बिशोई जी। वरिष्ठ महिला सदस्य हैं, कृपया ध्यान से सुनिए उनकी बात, प्लीज। सुप्रीम कोर्ट मातृत्व सुविधा अधिनियमर धारा 5 संविधान बौद्धता को चैलेंज करी एक आवेदन उपरे केंद्र सरकार को उत्तर मागी थिले। एही अधिनियम अनुसार जड़े महिला मातृत्व छुट्टी पाइबा को योग्य हेबे जदि 3 मास को कम बयसर शिशु को आईनगत भावे ग्रहण करे। एही निर्दिष्ट नियमटी भेदभावकारी एवं मनमुखी अटे, कारण यह केवल पोष्य संतान मानकु प्रभेद करे नाही, बरं 3 मासरू अधिक बयसर अनाथ और परित्यक्त पिला मानकु मध्य भेदभाव करे। पोष्य संतान मानक पाई 12 सप्ताह मातृत्व लाभ करिबा और अन्य माता मानकु दिया जाइथिबा 26 सप्ताहर मातृत्व सुविधा तुलना रे कम अटे। तेणु भारतर समस्त माँ पाई समान सुविधा देवा पाई महिला एवं शिशु विकास मंत्रालयर मातृत्व सुविधा अधिनियम रे संशोधन करिबा जरूरी अटे। सारे मु आपणक माध्यम रे माननीय मंत्री महोदय दृष्टि आकर्षण करिबा पाई चाहूँगी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। देखिए, यही जो है लोकतंत्र का सौंदर्य है, ये उसकी ताकत है। श्री CN अन्नादुराई।
Honorable Speaker, sir, I draw through the August House the kind attention of the Honorable Minister of Tourism to the huge potential of tourism development in Tirunnamalai Parliamentary Constituency in Tamil Nadu. The world famous Lord Arunachaleswarar Shiva Temple for Darshan and Girivalam are hotspot for domestic and international tourism. Proper planning and adequate investment on basic tourism infrastructure would yield high returns of to the government and generate large number of employments. World-class tourism facilities would attract tourists for all the world. The agrarian economy of the region of world also be transformed into tourism economy. Thank you, sir. श्री हनुमान बेनीवाल जी, हनुमान जी आपका ध्यान चेयर की तरफ नहीं है। श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, नहीं आप बैठ जाइए, बैठिए आप। सुनीता जी। सभापति महोदय बहुत बहुत धन्यवाद। चाहिए भाई। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी की तरफ जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का ध्यान दिलवाना चाहती हूँ कि 1913 में निर्मित उत्तर रेलवे के अधीन जाखल हिसार सेक्शन पर, जिसमें कि मेरी लोकसभा सिरसा के गाजूवाला, पृथला, जमालपुर, शेखा और कुडनी स्टेशन आते हैं, इन 4 स्टेशनों के आसपास बहुत से गांव जुड़े हुए हैं। सभापति महोदय, ये 108 साल पुराना जो है, आप ये देखिए, ये सेक्शन है और कोरोना काल से पहले मात्र 8 जोड़ी रेलगाड़ियों का संचालन इस सेक्शन में होता था और जिसमें मेरी संसदीय क्षेत्र के अंदर केवल 5 जोड़ी रेलगाड़ियों का ठहराव होता था। लेकिन कोरोना काल के बाद क्या हुआ है कि सेक्शन में केवल 5 जोड़ी जो रेलगाड़ियां उनका ठहराव हो रहा है और जो मेरा इलाका है उसमें केवल 1 गाड़ी का जो है ठहराव हो रहा है, जिसमें कि जमालपुर शेखा जो गांव है जिसमें 10,000 की आबादी है, वहां पर तो एक भी ट्रेन का ठहराव नहीं है। तो आपके माध्यम से मैं आदरणीय रेल मंत्री जी से ये आग्रह करना चाहती हूँ कि नंबर 1 बात कि 108 साल पुराने इस सेक्शन की तरफ ध्यान दिया जाए। नंबर 2 कि कोरोना से पहले जो व्यवस्था 8 जोड़ी सेक्शन में थे उनको फिर से शुरू किया जाए और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो 5 जोड़ी गाड़ियों का संचालन था उसको वापस शुरू किया जाए और आखिरी में 10,000 की आबादी वाले जमालपुर शेखा गाँव में ज्यादा से ज्यादा ठहराव जो है वो ट्रेन का। बहुत धन्यवाद सर। मैं आज पंजाबी च बोलूंगा क्योंकि सर किसानां ते बोलना, मैं सर आज किसानां ते बोलना कि उन्हां दा MSP लॉ क्यों बनाया जाए, मैं रीजन कारण दसने चाहना कि सर 1966 विच MSP शुरू की गई सी, 23 फसलों की MSP दिंदे आ, पर शांता कुमार कमेटी ने कहा कि अजे सिर्फ 6% किसानों को MSP मिल रही हैगी आ, 6% फार्मर्स आर गेटिंग MSP। सर 3 या 4 फसलों की थोड़ी हुंदी आ, बाकी किसी 23 फसलों चो हुंदी नहीं आ। मैं इस करके कहना चाहता सी इहदा कानून बनाया जाए, मैं प्राइवेट मैंबर बिल दिता उन्होंने करे। और मैं दूसरी गल भी कहनी चाहना कि इहदे ते जेड़ी MSP की प्राइस फिक्सेशन है सर वो घट्टो घट इन्फ्लेशन के नाल तक कंटिन्यू करो। इस साल आज पैडी का 3.7% ਵਧਾਇਆ, वीट का 2% ਵਧਾਇਆ, जबकि इन्फ्लेशन 4.48% है। इस करके मेरा बेनती हैगी सी कि MSP का लॉ बनाया जाए। श्री हनुमान बेनीवाल जी, अन्नदाता बैठे हो। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। सभापति महोदय, सरकार ने जो देश के अंदर किसान आंदोलन चला, इसके अंदर किसानों का जो बड़ा संघर्ष था देश के अंदर और 700 से ज़्यादा किसानों ने इस आंदोलन के दौरान शहादत दी और दिल्ली की सरकार को किसान आंदोलन के आगे NDA के सहयोगी जो उन्हें छोड़ के चले गए, उसके दबाव में तीनों कृषि बिलों को वापस लेना पड़ा, तीनों काले कानून रद्द हुए। लेकिन सभापति महोदय, हमारी एक ही मांग है कि 700 से ज़्यादा जिन किसानों ने अपने हक और अधिकार के लिए शहादत दी, उनके परिवारों का आप सर्वे करवा के उनको मुआवजे का ऐलान दिल्ली की सरकार करे और जो मुकदमे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के किसानों पर किए उनको विजय कुमार दुबे जी वापस लिए जाए। और साथ ही साथ धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं आपका ध्यान आकृष्ट कुशीनगर के बौद्ध सर्किट एरिया के तरफ ले जाना चाहता हूं, जहां
भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल है, उस एरिया बहुत सर्किट एरिया को एक दार्शनिक और एक धार्मिक स्थल के रूप में दुनिया के मानचित्र पर ले जाने के उद्देश्य से अभी बीते 20 अक्टूबर को हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे देश में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर का है जो रेल सुविधा से वंचित है। गोरखपुर से कुशीनगर और कुशीनगर से पटरौना की परियोजना, जिसमें पिछले सत्र में रेल मंत्रालय ने 50% उत्तर प्रदेश सरकार से मांगा था, इस कोविड के समय में राज्य सरकार देने में अक्षम है। मेरा निवेदन है कि पूर्ण धन आवंटन करा के इस परियोजना को पूरा कराया जाए। धन्यवाद। நன்றி மக்களவை தலைவர் அவர்களே. என்னுடைய பாராளுமன்ற தொகுதி ராமநாதபுரம் மாவட்டம், ராமநாதபுரம் பாம்பன் கடல் வழியாக புதிதாக அமைய இருக்கக்கூடிய பாலத்தை குடியிருப்புகளை பாதிக்காத அளவு மாற்றுப்பாதைகளை அமைக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அந்த புதிதாக கடல் வழியாக அமையக்கூடிய பாலத்திலே 400க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் பாதிக்கப்படுவதால் அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய குடியிருப்பு வாசிகள் அச்சத்தில் இருக்கின்றார்கள். அவருடைய அச்சத்தை போக்கக்கூடிய வகையிலே இந்த திட்டத்தை மாற்றுப்பாதையிலே அமைக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். தமிழகத்திலே வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து பல்வேறு மாவட்டங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. தமிழக அரசு தீவிரமான நடவடிக்கை எடுத்து தொடர்ந்து ஒன்றிய குழுவினர் பார்வையிட்டு சென்றிருக்கின்றார்கள். தமிழக அரசு கோரியுள்ள அந்த நிவாரண நிதியை உடனடியாக தமிழகத்திற்கு வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். தமிழ்நாட்டிலே கொரோனா பொது முடக்கத்தின் காரணமாக குறைக்கப்பட்ட அந்த உள்நாட்டு விமான சேவைகளை மீண்டும் அதிகப்படுத்த வேண்டும். குறிப்பாக மதுரை, சென்னை போன்ற உள்நாட்டு விமான நிலையங்களுக்காக இடையிலே குறைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த விமான சேவையை மீண்டும் அதிகப்படுத்த வேண்டும். மீனவர்கள் அதிகமாக வாழக்கூடிய பகுதி என்னுடைய பாராளுமன்ற தொகுதி. மீனவருடைய பாதுகாப்பு जी अधिष्ठाता महोदय, मैं एक बहुत ही अत्यंत लोक महत्व के महत्वपूर्ण विषय को आपके ध्यान में और आपके माध्यम से सरकार की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। कोरोना की वैश्विक चुनौती से न केवल भारत, पूरी दुनिया जूझ रहा था और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने कोविड की चुनौतियों को और यहाँ तक कि उन चुनौतियों का सामना नहीं किया बल्कि लोगों के जान और जहान को भी बचाने का काम किया। हमारे वैज्ञानिकों ने सीधे बात पर आइए प्लीज। या मैं कहना चाहता हूँ कि आज एक फिर से नया वायरेंट जो पूरी दुनिया के सामने खतरा हो गया, ओमिक्रॉन, और उस ओमिक्रॉन के खतरे से अभी भारत अछूता है। भारत ने 1 दिसंबर से एक मेडिकल हेल्थ प्रोटोकॉल की गाइडलाइन जारी किया है कि 12 कंट्रीज के आने वाले लोगों का RT-PCR होगा। नेगेटिव होने के बावजूद भी वो 7 दिन के लिए उनको होम क्वारंटीन में रहना होगा। लेकिन इसमें निश्चित तौर से राज्य सरकारों को भी सहयोग करना होगा कि कहीं ये चुनौती न खतरा हो जाए, इसकी जागरूकता के लिए, क्योंकि जिस तरीके से इसमें 30 म्यूटेशंस हो रहे हैं और स्पाइक प्रोटीन को लेकर के इसके जीनोम के डाटाबेस बनाने की बात है, तो ये मैं आपके माध्यम से बड़ा महत्वपूर्ण है कि आज इस चुनौतियों पे निश्चित तौर से जिस तरह से कदम उठाया है 64,000 रावत जी। मैं आखिरी बात एक लाइन कह दूं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। चलिए अस्सी से धन्यवाद किया है कि हर जिले में टेस्ट होगा, टेस्ट लैब होगा, तहसील में होगा और डिस्ट्रिक्ट पे होगा। देश के अंदर एक शिक्षा नीति बनी और जिसका स्वागत हम सब लोगों ने किया, पूरे देश ने किया। लेकिन साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि मेरे उत्तराखंड के अंदर विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, मैदान भी है, पहाड़ भी है। आज भी पहाड़ के दूर दराज क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा नहीं है। मैंने पिछले समय में भी यह विषय उठाया था और वो प्रक्रिया आगे बढ़ी थी कि हर ब्लॉक में केंद्रीय विद्यालय खुलें
और जो प्रक्रिया आगे बढ़ी, लोगों ने जगह भी दी है और अन्य उपलब्धि कराने की बात की है। मान्य प्रक्रिया आगे बढ़े और हर ब्लॉक में एक केंद्रीय विद्यालय खुले। मेरा भारत सरकार से, शिक्षा मंत्री से ये आपके माध्यम से डिमांड है, मांग है मान्यवर, जिससे अच्छी शिक्षा वहाँ के क्षेत्र के बच्चे भी ले सकें। धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय। देश में ग्रामीण पर्यटन की संभावनाओं को पहचानते हुए टूरिज्म मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत 15 ग्रामीण थीमेटिक सर्किट की पहचान की है, जिसका लक्ष्य है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनः मजबूती देना तथा घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को देश के ग्रामीण पहलू से झलक दिलाना। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री टूरिज्म से ये निवेदन करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज में स्थित थावे पीठ, जहां मां दुर्गा की भव्य मंदिर है, उसको स्वदेश दर्शन स्कीम में शामिल किया जाए। धन्यवाद सभापति। श्री सुशील कुमार सिंह जी। क्या बोल लो सामने और सरकार, लाखों लोग प्रभावित हैं। देश भर के विभिन्न जेलों में लाखों की संख्या में ऐसे बंदी हैं जिनके ऊपर जो मुकदमे हैं, उन मुकदमों के आधार पर उनको जो अधिकतम सजा मिल सकती है, चाहे वो 2 साल का हो, 5 साल का हो या 7 साल का हो, या तो मुकदमों की सुनवाई नहीं हुई, उसके फैसले नहीं आए, या उनके विरुद्ध मुकदमों की निर्धारित सजा से अधिक दिनों से जेल में है। मेरा आपके माध्यम से, इस सर्वोच्च सदन के माध्यम से भारत सरकार से ये निवेदन है, आग्रह है कि ऐसे लाखों की संख्या में जेलों में बंद बंदियों को भारत सरकार विभिन्न अवसरों पर, चाहे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती हो, पुण्यतिथि हो, या पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती हो, पुण्यतिथि हो, या किसी ऐसे विशेष अवसर पर ऐसे बंदियों को रिहा किया जाए, ये मेरा आग्रह और निवेदन आपके माध्यम से भारत सरकार से है। देखिए माननीय सदस्यगण, बहुत बड़ी संख्या में माननीय सदस्य